Assalamu alaikum. I'm thoroughly pleased to witness you all here in this workshop. It's my privilege to address you all on behalf of our YouTube channel, Healthy Lifestyle by Farzana Irfan. And I hope you have subscribed our channel too. I welcome all the participants in the workshop and declare the workshop open. With this beautiful quote, today I refuse to stress myself out about things I cannot control or change. Our respectable attendees, our doctors, our panelists, you all know that the stress is a silent killer. We have to measure our stress. A psychological and a physical response of the body that occurs whenever we must adapt to changing condition. The formula is S is equal to P greater than R. S stands for stress, P for pressure, and the R is for resource. When the pressure is greater than the resource, what you get is the stress. What is trauma? Trauma is a painful and distressing experience. What is stress? It's a response to the events that are threatening or challenging. And the stresses they are the stimulators or the situations. The stress response is the mental and the physical response to the stresses. The categories of stresses are frustration, conflict, pressures. Conflict is basically struggle or a clash between two opposing forces and which created stress. There are 4 types of stress. You can have a stress on your body, on your mind, you have emotional stress, you can have a behavioral stress, the headache, the frequent infections, the taut muscles, the muscular twitches, fatigue, skin irritation, and breathlessness. It comes in your body stress. Then it's mind stress, worry, muddled thinking, impaired judgment, nightmares, indecisions, negativity, hasty decisions. These all comes under the mind stresses. And your emotional stresses, loss of confidence, more fussy, irritability, depression, apathy, alienation, apprehensions. These all things come under your emotional stress and your behavioral stress. Accident prone, loss of appetite, drinking more, insomnia, restlessness, or smoking more. These are the factors in your behavioral stress and which are obviously very negative. Then the stress, it leads to severe diseases if you don't manage it, like asthma, cold or flu, cancer, depression, eczema and other skin disorders, post-traumatic stress disorder, the stomach ulcers, the heart problems, the diabetes, the hypertension. And stress is basically the mother of all diseases. Music. Music plays an important role in stress relief. Thank you for always clearing my head, healing my heart, and lifting my spirits.
है डॉक्टर तायरा, उसके हवाले से पूछना चाहूंगी। एक है 4A टेक्निक स्ट्रेस रिलीविंग की, वो मैं चाहती हूँ आप बताइए लोगों को व्हाट 4A स्टैंड्स फॉर। देखिए, जब हम बात करते हैं स्ट्रेस, ठीक है, तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज किया जाए। जिस जिस हम दुनिया में रहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ दुनिया है तो देयर इज स्ट्रेसेस, देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर स्ट्रेसेस, बट हाउ टू हैंडल दैट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब हम स्ट्रेस को हैंडल सही तरीके, पहले तो समझे कि स्ट्रेस है या नहीं है, और अगर है तो उसको किस तरह से हैंडल करें। तो दिस इज बेसिकली टेक्निक्स, और जिस तरह से हम स्ट्रेस को समझते हैं, तो एक टेक्निक्स है जिसको हमको 4A's टेक्निक्स कहते हैं उसको। तो 4A's टेक्निक्स है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें आता है अवॉइडेंट, A स्टैंड फॉर अवॉइडेंस, ठीक है। देन सेकंड इज अल्टर्न, देन थर्ड इज एक्सेप्टेंस, एंड द फोर्थ इज अडेप्ट, ठीक है। अब हम इसकी अगर डेप्थ में जाते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। अगर हम बात करते हैं अवॉइडेंट, अवॉइडेंट डजंट मीन द वर्ड अवॉइड के बस आपने अवॉइड किया, नो। स्ट्रेस आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको स्ट्रेस कहाँ से और किन चीज़ों से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि सुबह में जल्दी होती है, जल्दी हपड़ दपड़ में काम, और ऊपर से निकलते हैं तो फिर ट्रैफिक एंड ऑल दैट, सुबह से ही स्ट्रेस में हम इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आइडेंटिफाई किया ट्रैफिक, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रैफिक तो यही होगा। हम उसको क्या कर सकते, उसको कैसे अवॉइड कर सकते, हम थोड़ा जल्दी निकलें, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स कि हमारी जिंदगी में हम पहले आइडेंटिफाई करें मुझे स्ट्रेस कहाँ से मिल रहा है, उन सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ, कैसे अवॉइड कर सकती हूँ। अब मुझे ऑफिस पहुंचना है, वो तो मैं नहीं अवॉइड कर सकती, बट वो ट्रैफिक जो मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं ना, उसके लिए क्या कर सकती हूँ, विच इज इन माई हैंड। मैं 15 मिनट पहले निकल जाऊँ, अगर बहुत ज्यादा है तो मैं आधा घंटा पहले निकल जाऊँ, मतलब मेरे पास स्ट्रेटेजी मौजूद है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड, कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें बॉदर करते हो, जो हमें लगता है कि उससे जब भी मिलती हूँ या जब भी हमारा सामना होता है तो एक स्ट्रेस में आ जाती हूँ, या कोई ऐसी चीज। तो एनीवन जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा हो, या आपको स्ट्रेस में डाल रहा हो, या आप वो नेगेटिव बात ही नहीं सुन सकती, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट बॉदर दैट पर्सन, और फिर आप अवॉइड करो ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। तो अवॉइडेंट का मेन मकसद ये है कि सिचुएशन को आप अपने हाथ में लें। अवॉइडेंट यहाँ पर मतलब ये अपने हाथ में जो जितना आप कर सकते हैं उसके लिए टू हैंडल दैट स्ट्रेस, टू मैनेज द स्ट्रेस, तो उसमें उन सिचुएशंस को, उन लोगों को, उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करो। द सेकंड वन इज बेसिकली अल्टर। अब बहुत सारी सिचुएशन में हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू दैट, द सेकंड पॉइंट इज देन अल्टर दैट सिचुएशन। अल्टर में क्या क्या चीजें अल्टर से है कि क्लियरली कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव सम इश्यूज, या जैसे मेरे पास अक्सर क्लाइंट आते हैं तो हस्बैंड से, तो सास से, तो फला से ये इश्यूज है, तो मैं उनसे कभी कि आपने खुल के उनसे बोले हैं। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम खुल की तब बोलते हैं गुस्सा पीक पे होते हैं और हम सिर्फ लड़ते हैं, तो वो नहीं होता। फीलिंग शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप उस बंदी के साथ आराम से बैठे और उनसे कहें कि आपकी फला बिहेवियर से मुझे ये पेन होता है, मैं एंग्जाइटी में आती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे डिग्रेड फील होता है, मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। एनी इमोशनल जो आपको फीलिंग्स है, कम्युनिकेट योर फीलिंग्स क्लियरली। मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे नहीं करना। कभी कभार हम बहुत बर्डन आए तो किसी को नो नहीं कह सकते, अच्छा ये काम नहीं कर लूँ, अच्छा ये भी कर लूँ। अब अंदर से मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ, स्ट्रेस मेरा बढ़ रहा है, बट आई कैन से नो टू अदर। नो, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप लर्न करें हाउ टू से नो टू अदर पर्सन, कि ऐसी बात भी करें कि आपने इनकार भी कर लिया और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा और आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज कर दिया। ये इतने सारे काम दुनिया के वन बीइंग्स हम उतना कर सकते हैं जितने हमारी कैपेसिटी है, तो हम हर चीज़ के लिए हामी नहीं कर सकते, हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर ये एबिलिटी टू से नो टू अदर पीपल व्हेनेवर वी फील लाइक इट, मेरे बस की बात नहीं या मेरा काम बहुत बढ़ गया है, मुरव्वत में ना जाए। हाँ,
मुरवत में ना जाए, कि दूसरे को इसमें तकलीफ आ जाती है, ऑफ कोर्स क्योंकि आप मुरवत में ना भी नहीं करते और वो आश्रय में रह जाता है। बिल्कुल। और फिर हम वो काम उस तरह से उस एनर्जी से करते भी नहीं है। जब हम अपना काम उस एनर्जी से नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो काम उतना फायदेमंद होता भी नहीं है। तो इट्स बेटर काम योरसेल्फ, स्टैंड आउट टू अदर पर्सन एंड जो जितना कर सकते हो उतना करें। तो दिस इज, यानी आप अपनी सिचुएशन को अल्टर जितना कर सकते हो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, डू दैट। एंड देन उसके बाद है एक्सेप्ट। बहुत सारी सिचुएशन को फिर आप एक्सेप्ट करें। सम टाइम वी कांट अवॉइड या फिर अल्टर, हम खुद से चेंज नहीं कर सकते, तो फिर एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें उन सिचुएशन को कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ने बुरा किया और ऑल द टाइम आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? तो आप एक्सेप्ट करें, एक चीज हो गई ना, वो गलती हो गई, तो आप लर्न करें हाउ टू फॉरगिव अदर पर्सन। कैसे? और ये फॉरगिव में हमेशा कहती हूँ किसी और के लिए फॉरगिव नहीं करें, अपनी जात के लिए करें फॉरगिव। क्योंकि जब हम किसी के, मुझे फलां बंदे ने धोखा दिया और मैं ऑल द टाइम उसके बारे में बात कर रही हूँ, सोच रही हूँ, धोखा तो एक दफा दिया, लेकिन मैं जितना उसके बारे में सोचूंगी, मैं उसके बारे में गुस्सा करूंगी, मेरी एनर्जी नेगेटिव हो रही है और नॉन फॉरगिवनेस लाइक अ हुक वो मेरे अंदर ही, मैं जब जब मूव करूंगी मुझे ही तकलीफ मिलेगी। तो फिर आप ये काम करें। फिर दूसरा ये कि आप अपनी आप को और पॉजिटिव करने के लिए अपनी थॉट, ग्लूमी थॉट्स में नहीं रहे कि एक नेगेटिव थॉट है आप उसी को फीड कर रही हैं। आप कुछ पॉजिटिव चीजें इन्वायरमेंट में लेंगे, उसके बारे में चीजें करें, ताकि जो आपका जो जितनी ग्लूमी थॉट्स हैं, जितनी नेगेटिव थॉट्स है, उतनी आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आप फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। तो आपने तो उसी को तो खत्म करना है। तो आप उससे निकलने के लिए एक्सेप्टेड हो गया, गुस्सा हो गया, चीज खराब हो गई, नई चीज चोरी हो गई, कुछ भी हो, एक्सेप्टेड और व्हाट विल आई डू नाउ, ठीक है? तो वो फिर हम जब एक्सेप्ट करते हैं ना, मैं अपनी क्लाइंट से कहती हूँ जिस दिन आपने अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया ना, तो 80% और ठीक हो गया। जैसे कहते हैं ना कि आप, मैं खुद भी इस चीज को सबको बताती हूँ कि देखें, आप सबसे पहले अपनी मिस्टेक खासकर एक्सेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और उसको रेक्टिफाई करें। ऐसा ना करें कि जस्टिफाई करते रहें। अच्छा, बिल्कुल वेरी ट्रू। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो फिर हम, मुझे एक्सेप्टेंस है, मेरा फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर जख्म है, यहाँ पर तकलीफ है, मैं एक्सेप्ट करूंगी, तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप कब होगा, मैं उसके इलाज करने के लिए रेडी। बिल्कुल। जब मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी तो डिनाइल में नहीं, डिनाइल में होंगी और मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं उसको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करूँ, बल्कि मुझे मुसलसल उसकी तकलीफ होगी। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सिचुएशन। तो उसी से हमारा स्ट्रेस लेवल, जितनी प्रॉब्लम है, वो बहुत reduce। अच्छा, लास्ट एक कौन सा है 4 का? द लास्ट वन इज अडेप्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अडेप्ट करें उन सिचुएशंस को, यानी आपकी कोपिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग हो, आप बेहतर तरीके से उन चीजों को किस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है? अपने लिए फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन है, यू कांट अवॉइड, यू कांट अल्टर, ये सब कुछ है। हाउ टू अडेप्ट इन्वायरमेंट में? अगर आपके पास 10 नेगेटिव चीजें हैं स्ट्रेस की, तो आपके पास कुछ तो पॉजिटिव भी होगा ना, अलॉट ऑफ थिंग। हम मेरे सबसे और कुछ नहीं, सुनने की हेस, देखने की हेस, टच करने की हेस, सोचने समझने की हेस, ये अल्लाह ताला ने दिया, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। तो आप अपनी इन्वायरमेंट में खुद ढूंढो क्या हैप्पी करता है आपको, वो चाहे मुस्कुरा के, या किसी को एक ट्रॉफी दे के, या किसी के साथ आउटिंग पे जाके, एनीथिंग विच मेक यू calm and relax and happy, उन चीजों को ढूंढो। वो चीजें जो है वो तो है अपनी लाइफ में, इन्वायरमेंट में स्ट्रेसेस है, प्रॉब्लम है, यानी वसाइल और मसाइल में रहते हुए आप अपनी पॉजिटिव चीजों को आप फोकस करो, हैप्पीनेस ढूंढो और अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बार बार रिपीट करो अपने माइंड में, क्या कैन डू इट, चीजें अच्छी हैं, हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने आप को दो। तो दीज आर द 4 थिंग। अगर हम इस थ्रू चलते हैं ना, तो समझे हमने अपने स्ट्रेस को बेहतर ये हैंडल किया और हम स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, हम बर्ड आउट नहीं होंगे, हमें तकलीफ नहीं होगी, हम बेहतर तरीके से इमोशनली चीजों को डील कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर, ये जो स्ट्रेसेस होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस भी होते हैं, बस आप जल्दी से कुछ बताएं कि एक्सटर्नल स्ट्रेसर किसको कहेंगे आप और इंटरनल स्ट्रेसर किसको कहेंगे? देखो, एक्सटर्नल स्ट्रेसर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज माय बॉस इज डोमिनेटिंग, एक्सटर्नल वो है, मुझे तो वहाँ काम करना है ना, बट दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रेस, ठीक है? आजकल फॉर एग्जांपल लोगों के फाइनेंशियल पैसे कम मिलते हैं, काम बहुत ज्यादा है, खर्चे बहुत ज्यादा है,
एक्सटर्नल स्ट्रेस हमारे ख्याल में नहीं है, बट दिस इज समथिंग इन्वायरमेंट से। पेट्रोल महंगा हो गया है। एक्सटर्नल स्ट्रेस हर चीज इन्वायरमेंट हमारे, फॉर एग्जाम्पल बाहर बारिश हो रही है, एक्सटर्नल स्ट्रेस हम क्या कर सकते हैं? अनअवॉइडेबल हो गई तो हो गया, तो है सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। तो दीज आर द एक्सटर्नल स्ट्रेस और ये हम सब फेस कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। कोई एक ही मुल्क से करना होता है, कोई दूसरे एक्सटर्नल स्ट्रेस आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स बढ़ रहे हैं, हर चीज एक्सटर्नल स्ट्रेस। और इंटरनल किसको कहेंगे आप? ओके, इंटरनल स्ट्रेस में अगेन योर इमोशनल आस्पेक्ट्स, आपकी पर्सनैलिटी प्रोन अगर आप हैं, आप इंटरेस्ट, आप ऑलरेडी सेंसिटिव हैं। कुछ लोग होते हैं ना, तगड़े होते हैं, डीट होते हैं, सिचुएशन थिक स्किन बिल्कुल, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, मामा ने डांट किया तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कहते हैं मुझे देख करके सब देगा ही क्यों। तो हम उन चीजों को क्या कर रहे हैं कि मैंने अंदर से उस चीज को पाल लिया और मेरी पर्सनैलिटी हो गई है बहुत नेगेटिव, मतलब बहुत सेंसिटिव। क्या होता है, मुझे एक्सटर्नली उसमें मेरी कोई बीमारी हो सकती है, फिजिकली इंसान की कोई बीमारी हो, वो एक स्ट्रेस है, वो मेरे ख्याल में नहीं हो गई। और इंटरनली अगर कोई साइकोलॉजिकल चीजें हो सकती है, इंटरनली हमारे बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ वो फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, वो मेंटल हेल्थ हो सकती है, स्ट्रेस की हेल्थ है, ये है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेसफुल जॉब है लेकिन मेरे बैक का प्रॉब्लम है, या अक्सर क्लाइंट होते हैं कि फलां चीज उनके साथ जुड़ी हुई है, वो एक मेजरली उनके साथ है। मेरे एक क्लाइंट थे, उनको बहुत ज्यादा बैक की प्रॉब्लम है, तो हर वक्त मतलब दायरे काम काज इन चीज़ों की वजह से काफी डिस्टर्ब होते हैं। एक दफा मैंने उनसे अपनी बात शेयर की, मैंने कहा यू नो एक्सेप्ट दैट यू हैव अ पेन। तो मुझे कहा कि डॉक्टर ये कहना आसान है लेकिन ये करना मुश्किल है, उठना पेन है। मैंने कहा बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे कहा यू कांट अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर नॉट इन दिस पेन। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपसे पर्सनल बात शेयर करूँ, एंड देन आई शेयर माय ओन। मैंने कहा 2004 की बात है कि मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी हेड इंजरी हुई, एंड उस हेड इंजरी में माई लेफ्ट बोन का जो ये वाला एरिया है आईब्रो के ऊपर, मैंने कहा ये फ्रैक्चर हुआ था, जो कि जाहिर है वो जुड़ तो नहीं सकता, उसको मतलब कोई प्लास्टर वगैरह सब नहीं लगा सकते। मेरी सारी आंखें ये सब इतनी डैमेज हुई थी कि प्लास्टिक सर्जरी मैंने 3 दफा कराई अपनी आंखों। तो मैंने कहा उसके बाद वो तो जो हो गया, और मैं उस वक्त मास्टर्स की वो दे रही थी पेपर्स फाइनल, तो प्रेप्स थे हमारे चल रहे, तो जाहिर है मेरे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, मुझे ये था कि मैं ना दूँ तो मैं पीछे रह जाऊँगी, वो प्रेशर ये सारे थे। साथ में ज़्यादा एक लड़की थी तो चेहरा खराब हो रहा, अनदर प्रेशर। एंड देन उसके बाद जो मेजरली मैंने उसके बाद वो तो सब रिलीफ हो गया सब करना हो गया। मैंने कहा टिल डेट उसके बाद मुझे ऑन एंड ऑफ हेडेक होती है। मैंने कहा ये क्या, मतलब आई वाज ऑन कि मुझे हेडेक पता नहीं था हेडेक होता है। फिर यहाँ पर खान को मैं दिखाया बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद जब सिटी स्कैन MRI तब ये आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे पोस्ट मिग्रेन डेवलप हुआ है आफ्टर दैट एक्सीडेंट। पोस्ट मिग्रेन मीन्स कि जब आपको हेड इंजरी हो जाती है तो उसके बाद आपको हेड इंजरी के बाद आपको ऑन एंड ऑफ उस हेड इंजरी के बाद आपको पोस्ट मिग्रेन रहता है। मैंने वो यूज स्ट्रेसफुल मतलब ज़्यादा कंप्यूटर पे काम किया, मोबाइल स्क्रीन देख लिया, या फिर अपने वैसे ही काम ज़्यादा किया, और मेरा तो काम ही यही है ना, मुझे पढ़ाती तो भी मेरा काम यही है, और वैसे भी हमारे जो मेरा काम है तो उसमें मेरा काम करना होता है। तो मैंने कहा नाउ आई अडेप्ट विद दैट, आई नो। मैं कभी किस दिन को आज मुझे हेडेक नहीं है, मैं तुम्हें बारे में बोलती हूँ, मुझे पता नहीं होता है, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना है वो बट आज द टाइम मैंने नेट नहीं करना, ये है तब मुझे फील होगा मेरे, तो हम फिर इन चीजों को यूं लेके चलते हैं तो लाइफ फिर इजी हो जाती है। अच्छा, एक और सवाल करूंगी, क्योंकि जो स्ट्रेस है मैं कहती हूँ उसे उम्मुल बीमारियों यानी कि बीमारियों की माँ है ना, वो कुछ बताइए कि अगर हम स्ट्रेस को ट्रीट ना करवाएं, तो कभी कभी देखिए कुछ ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं डॉक्टर साहिबा जो खुद से इंसान हैंडल नहीं कर पा रहा होता, एंड दे शुड गो फॉर अ काउंसलिंग, फॉर साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग और टू अ साइकाइट्रिस्ट। उसमें कोई ये मिथ बना लिए लोगों ने कि शायद कोई ऐसे जा रहा है तो उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या है, पागल है, ऐसे ये बिल्कुल गलत है। तो मैं ये चाह रही हूँ आपसे पूछना है कि लोगों को ये बता दें कि देखिए अगर उन्होंने शुरू से स्ट्रेस को ओवरकम नहीं किया तो वो कौन सी बड़ी बीमारी है जिससे खुदा ना खास्ता उनको हो सकती है। देखो स्ट्रेस को हैंडल करना, स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में हम सब फेस करते हैं, बट स्ट्रेस को ट्रीट करना जरूरी है।
डिसऑर्डर, ये सारी वो चीजें, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स। अब तो जितनी भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अक्सर कहते हैं कि यार मेरे पास संडे को ही मेरे पास एक यंग कपल आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे डायबिटीज लेवल पे है, तो वेरी यंग। तो मैंने उनसे कहा कि इट्स बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बल्कि नाउ रिसर्च शो जो कैंसर है वो अक्सर स्ट्रेस कौन होता है। तो फिजिकल बीमारियों के साथ साथ हमारी साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत सारे डेवलप हो जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आप इनिशियल स्टेज पे उसका इलाज करें, किसी से डिस्कस करें। कभी कभार हम अपनी बात सिर्फ हल्का कर देते हैं ना, अपनी बात खोल के बताते हैं, अपनी फीलिंग वेंट कर लेते हैं, हमें रिलीफ मिल जाता है, हम सुकून में आ जाते हैं, हमारा जो ग्लास फिल हुआ होता है ना स्ट्रेस का, वो कम हो जाता है और हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। तो गो अहेड, डिस्कस विद प्रोफेशनल, काउंसलर के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, जरूरत हुई तो मेडिकेशन की तरफ भी जाए। वो कोई स्टिग्मा नहीं, कुछ अर्से के लिए मेडिसिन ने ठीक हो जाए देन टेक ऑफ कर दें, बट यू नीड टू डिस्कस। एंड आजकल के टाइम पे तो मैं कहती हूँ एवरीवन मस्ट नीड टू गो टू साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर, सो दैट टू जिस तरह से हमें फिजिकली बीमारी हो सकती है, हम जिस इन्वायरमेंट में आजकल रह रहे हैं ना, तो वी ऑल नीड टू डिस्कस अबाउट पेन एंड स्ट्रेसेस टू अदर पीपल, प्रोफेशनल, ताकि हम उसको मैनेज करना आ जाए। अच्छा, ड्यू सेकंड में मैं एक मेरी जो ओपिनियन, जो मेरा अपना कहना है वो ये है कि डिस्कस करना है, मगर लोगों को ये भी देखना है कि हर किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता। आप सोचे कि क्यों मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं, साइकेट्रिस्ट के, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीजें। आप जिसको आजकल हमें नहीं पता कौन हमारा दुश्मन, कौन हमारा दोस्त, कहते हैं ना रो के सुनते हैं, हंस के उड़ाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, ये मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी वो चीज जो आपकी बहुत पर्सनल है और आपको पेन दे रही है, वो हम हर बात फ्रेंड से भी शेयर नहीं कर सकते, हम हर बात अपनी फैमिली से भी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी इमोशनल हो जाते हैं हमारे पास। बहुत सारी बातें आप ब्रेंडली भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए कि आपको पता हो कि आपकी बात आप तक और उस बंदे कॉन्फिडेंशियल। फिर अगेन आपने जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम, उसने अपनी एज के ग्रुप के बंदे से डिस्कस किया, वो उसके अपने लेवल के मुताबिक आंसर देगा ना, क्योंकि उसकी भी तो इतनी लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है। वो उसको किसी और को बताए, लीक आउट हो जाए, वो भी एक है पॉइंट, बट उसके पास उसका बेहतर सोल्यूशन या बेहतर जो हम कहते हैं कि उसको होल्ड करना नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, आपको ट्रस्ट होगा कि जहाँ गए हैं आपको वहाँ से सर्विस मिल जाएंगे, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट दे आर प्रोफेशनल। आप लोगों की इमोशनल या कोई आपकी ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर आपको वो वाले खतरे भी नहीं है कि लीक आउट हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। वो मिलकर प्रोफेशनली आपकी बात सुनेंगे, अब वही टाइम आपका होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, एंड देन आप बहुत पॉजिटिवली अपने सेशंस के लेके पॉजिटिविटी लेके। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली बात अपने फ्रेंड से सब बताए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम